Yes. We are live now. Yeah, please. So another 1 minute, we will wait for the attendees to join. Okay. Yes, sir. Yeah. So good evening, all the attendees. Good evening to all our panelists today. This is Ajinkya Dalal. I am representing I am the best mom community here. I am the best mom is having the purpose of winging the aspiration of mothers and touch upon all the different aspects which a parent should know. So today's topic is early intervention in premature babies. And we have as a guest speaker, so I'm very proud to introduce Dr. Inchi Loniel. She is pediatric physiotherapist and special educator. Apart from that, ma'am is practicing in Meerut from last 16 years. She's also attached to Jaswant Rai Multi Speciality Hospital. She looks after the conditions like developmental delays, autism, and the delayed milestones as well. Apart from that, she is a very good storyteller, and she believes storytelling is the right approach when she deals with the kids and the parents as well. And along with her, we have our host for the day. And as this completes cover page, cover story, we have Dr. Anuj Rastogi sir as a host. He is the senior neonatal pediatrician at Meerut. And I would like to start the session by quoting a very nice quote by Tyson that everything we do, every thought we have ever had is produced by human brain, but exactly how it operates remains one of the biggest unsolved mysteries. And it seems the more we probe its secrets, the more surprises we find. So, as the quote says, there are many mysteries we have as a parent, and today we are here to solve few of them. With this, I'll hand over the session to Dr. Anuj Rastogi, sir. And, sir, please take the session ahead. Thank you. Thank you, Ajinkya. Thank you. Once again, I am presenting this cover page story to all of you, and I am Dr. Anuj Rastogi, practicing as neonatal pediatrician for last more than 20 years in Meerut city of UP. This when I was practicing few decades ago, around 20 years back, I was working in my nursery. Then I got a call from Operation Theatre for a baby. That baby was 26 week old, and that was kept into a tray. And when obstetrician had delivered that baby, she thought this baby is not viable, and then she kept that into the tray. At that moment of time, it was the scenario.
And when that baby started crying, they called me, and I took that baby and I brought her to the nursery. So with the time keep passing, and science started developing a lot. There was CPAP, ventilators, and surfactant. There's so many things which has come. Now we have in utero transfer for these young babies, and we are treating them in incubator, and most of them are surviving. With advancement in intensive care, with advancement in our knowledge, we are saving all these babies. Even in India, people are saving even 25 weeker also. So, but with this, there is no doubt there is saving of life, but sometimes there is increase in the morbidity also. There is some cognitive delays, there is some developmental delays, some motor delays. A few of them they develop cerebral palsy, or they have some learning disability in form of dyslexia or autism or ADHD. There are so many things. And side by side rehabilitation work was on, because no, as a doctor, we, as my community, we want to save child with a greater purpose. We want to save them to have their meaningful life. They should not be dependent on their parents. And that is how this early intervention would come into the function. And in early intervention, it was realized our brain have capacity to remodel or to change its wiring or to change its pathways in first 1,000 days up to the maximum. Although it keeps changing throughout life, but the potential of change of this change is maximum in first 1,000 days or first 3 years, maximum around 2 year of age. And there is a term that was coined as neuroplasticity. Neuro means neuron, and plasticity means malleability of the neurons. So whatever neuron, because brain is made up of billions of neurons, and there are billions of pathways. So when you are treating these patients, sometimes there is infarct, or sometimes there is a central area, basal ganglia or thalamus. There are some problems there. Some in utero problem are there, or sometimes you have intraventricular hemorrhage, some brain hemorrhage, and then you are thinking this baby was saved, but this baby may have some problem in time to come. Here, this early intervention come into the picture. Neuroplasticity does not mean any brain is plastic. Plastic means malleable. Okay, that is adaptive. These cells are adaptive, and there is a very great phenomena in the brain. You either you use it or lose it. If you don't use certain pathways, you are that are going to be dormant, or they will be pruned out, like you prune out the bushes, and which are when you go into the garden and you have seen the gardener, they remove extra herbs or extra bushes. So like that, if you are not using those pathways, they are pruned out, and then you are left with the disability. And there's one more thing, and as you know, at around 6 months, baby start sitting, and at 7 months they start sitting without support, and 1 year they start walking. So there is its developmental window for everything in a baby. If your baby has not achieved sitting at the age of 6 months, or without support at the age of 7 months, how can you think of that baby is going to start walking at 1 year of age? So when you realize at some time it is too late, when ship sailed off, then there's no point in you can't join that ship. So these are the things which you should understand, and you should go for the health checkup also for the child. And most of the time, parents are coming for the sick care. Again, this is pediatrics is beyond medicine. This is a holistic approach. This is a complete approach when you should take care of your child. And most of the time, since as a pediatrician, what I feel miserable. Child is running fever, vomiting, and he is in the dehydration. And this was not the time to to assess their development or to advise them something, because you want to you want to help them in that crisis of gastroenteritis or dehydration or something like that. So India is lacking in the well baby checkups. If they come for well baby checkups, or they plan their
journey with us, then result will be different. So there will be less missing of these disabilities, and we will be sending, because it is a multidisciplinary approach. We write certain medicine, certain vitamins to these babies, but side by side they require certain therapies. There are occupational therapies, sometimes physiotherapies, and sometimes behavioral therapies, vis- uh, vis- uh, visual stimulation, auditory stimulation. There are so many things. There are more than 10 therapies that goes together. Luckily now in every city these kind of centers are coming up where under one roof you are getting all the therapies for the betterment of this child. बट सूनर द बेटर. जितना आप जल्दी शुरू करेंगे, जितना अर्ली शुरू करेंगे, उतने रिजल्ट्स आपके रिवार्डिंग होने जा रहे हैं. जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, if your child not sitting at the age of 6 months or not sitting without support at the age of 7 months, how can you expect him to walk? जब ये पहला ही माइलस्टोन उसका रजिस्टर हो गया तो वो ही इज नॉट गोइंग टू वॉक. So with this preface, I will request Dr. Inchi to throw some light on this topic. डॉक्टर इंची बताइए, आप कैसे जब आपके पास कोई बच्चा ऐसे आता है जो हाई रिस्क इन्फेंट, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं जिनमें काफ़ी इंटेंसिव केयर हुई होती है और जो समय से पहले पैदा हो गए, या जो घर में रह के पूरी तरह नहीं पनपे हैं, या जिनके अंदर ब्लड प्रेशर की दवाई चली है या कोई मेजर सर्जरी हुई है, तो ऐसे बच्चों को हम हाई रिस्क इन्फेंट कहते हैं. या जो बच्चे इंक्यूबेटर के अंदर सांस रोकते हैं और उनको स्टिमुलेंट कैफीन टाइप की ड्रग्स देनी पड़ती है, ऐसे बच्चों को हम हाई रिस्क इन्फेंट कहते हैं. जनरली हम उनका विजुअल टेस्टिंग भी करते हैं, आरओपी, जिसे एक उनकी आँख की पर्दे की जांच भी करते हैं, और उनकी कानों की जांच भी करते हैं कि कोई उनके अंदर डेफनेस तो नहीं है या उन्हें कम सुनाई तो नहीं देगा आगे चल के. बिकॉज जो हमारा सेंसरी सिस्टम है वो पूरा इंटीग्रेटेड है, जो हमारी सेंसेस हैं उन्हीं से हम सब कुछ लर्न करते हैं. तो अगर एक भी चीज़ हमारी कहीं लैक करेगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ेगा. तो इसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट कंसल्टेंट हैं या जो एप्रोप्रिएट थेरेपिस्ट हैं, हम उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं और वो हमारी इसमें हेल्प करते हैं और इन बच्चों को बेटर करने में मदद करते हैं फैमिलीज़ की. और ओवरऑल बच्चा बेटर होता है तो सभी को अच्छा लगता है. तो डॉक्टर इंची, जब आपके पास एक ऐसा बच्चा कोई पीडियाट्रिशियन या कोई डॉक्टर रेफर करते हैं, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूँ, आपके पास 1 महीने का बच्चा है जिसकी जिसकी बहुत ज़बरदस्त इंटेंसिव केयर हुई है, जो 2 महीने नर्सरी में रह के आ रहा है, तो अब उसका आप कैसे प्लान करती हैं, कैसे पेरेंट्स को समझाती हैं, क्या करती हैं, थोड़ा आप बताइए हमें. Good evening, sir. Thank you for having me here. सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, जैसे आपने कहा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत ब्यूटीफुल फिनोमिनन है जिसको हमें अर्लीस्ट ही कैपिटलाइज करना चाहिए. ये मतलब ईश्वर का दिया हुआ ये बच्चों के लिए इतना बड़ा ब्लेसिंग है कि यदि अगर बच्चे को कुछ भी ब्रेन में कोई भी एरिया उसका अफेक्ट हुआ या मल्टीपल एरियाज अफेक्ट हुए उसके बर्थ के दौरान या बर्थ के पहले के कोई फैक्टर्स के या बर्थ के बाद के कोई फैक्टर्स के कारण, अगर कुछ भी उसकी पेरीनेटल पीरियड में कुछ भी हुआ, तो उसमें कई जब एरियाज अफेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा काम जब आता है कि हम उनके, जब 1 महीने का बच्चा है तो 1 महीने के बच्चे में हम बहुत कुछ नहीं जानते उस बच्चे के बारे में. सबसे पहला इम्पोर्टेंट होगा कि हमारा असेसमेंट क्या है उस बच्चे को लेकर. बट बच्चा हमें कोई माइलस्टोन नहीं दिखा रहा है तो हमें होलिस्टिकली उसको डील करना है, क्योंकि अभी वो वॉच वाला पीरियड चल रहा है जब वो हमें धीरे धीरे अपने माइलस्टोन्स दिखाएगा कि हाँ, उसका 1.5 मंथ में जब आई कांटेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो उस समय हमारा काम है कि पेरेंट्स को हम ये पहले काउंसिल करें कि आपके बच्चे को रिक्वायरमेंट क्या है, और इसके लिए ओपन होना कि हमारी असेसमेंट के बाद जो भी हमें लगता है और जो स्टिमुलेशन हम उन्हें एडवाइस करें वो अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि बच्चे में दिक्कत आ सकती है, डिले हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिले पक्का आएगा, बट इट इज सच अ टाइम एट 1 मंथ कि इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि हाँ ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बच्चा बहुत अर्ली फेज में है, हमारे पास बहुत अर्ली आ गया है, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका असेसमेंट में क्या करेंगे हम कि बच्चे का सबसे पहले
कि बच्चे की जनरल कंडीशन कैसी है, किस फेज से निकल के आया है नर्सरी से, अब वो स्टेबल है कि नहीं है, बिल्कुल अदरवाइज हेल्दी है, मेडिकली स्टेबल है या नहीं है। उसके बाद हम उसका पहले टोन असेस करेंगे। टोन का मतलब होता है कि बच्चा टाइट तो नहीं है, जितनी टाइटनेस या जितनी लूजनेस एक मसल में एक टेंशन होनी चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं है या उससे कम तो नहीं है। यदि टाइट है तो वो हाइपरटोनिक होता है, अगर लूज है या फ्लॉपी है, ढीला है बच्चा, तो फ्लॉपी है वो। तो दोनों ही वेज, अगर नॉर्मल से कुछ भी डेविएशन है तो वो हमें चेक करना जरूरी है। फिर उसके बाद उसकी क्राई कैसी है, कि वो अपनी पूरी क्राई जितनी उसकी उस समय अपनी एज अप्रोप्रिएट वो ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। उसकी सकिंग कैसी है, वो अपना मुंह चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा है, वो अपनी मम्मी का फीड ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, वो बॉटल से कैसे फीड कर रहा है, वो अभी तक ट्यूब फीड पर तो नहीं है, वो कितना उसका माउथ का, यहाँ के ओरल स्ट्रक्चर्स का उसका टोन कैसा है, उसका टाइटनेस है या बिल्कुल सुस्त है वो। उसके बाद उसकी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, कि उसकी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी कि वो हाथ पैर बराबर चला रहा है या उसमें कुछ डिफरेंट है। हाथ पैर बहुत टाइट भी हो सकते हैं, कि बच्चा इतना टाइट है कि उसके पैर बिल्कुल आसपास ही चल रहे हैं, या उसके हैंड्स वाइड ओपन हो जा रहे हैं, या वो चौंक बहुत रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हमें कुछ मार्कर्स उसके असेस करने होते हैं। उस असेसमेंट के बाद हमारा काम आता है उसका मोटर एग्जामिनेशन करना, कि पहले जो डेवलपमेंट उसके पीडियाट्रिशियन ने हमें लिखकर उसके बारे में दिया है कि उसका हेड ग्रोथ कैसा है, 1 मंथ में कितना अचीव हुआ है, उसका जितना होना चाहिए था उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हियरिंग असेसमेंट करना। हियरिंग असेसमेंट हम यूजुअली पूजा की बेल से करते हैं। या तो बच्चा एकदम से शांत हो जाता है अगर रो रहा है तो, या फिर अगर रो नहीं रहा है, शांत है, तो एकदम से रोने लग जाता है। तो उसका वो हल्का सा चौंकना या अलर्ट होना ही हमारे लिए ये अच्छा सिग्नल होता है कि बच्चे की हियरिंग है। सेकेंडली, विजन। तो विजन में 1 महीने के बच्चे में हम एक रेड बॉल से असेस करते हैं। रेड बॉल, जैसे कि ये रेड बॉल है, एक उसको हम हैंग कर देते हैं एक रेड रिबन से, और उसको असेस करते हैं कि क्या बच्चा उसको थोड़ा सा भी देख रहा है कि नहीं देख रहा है, फिक्स कर रहा है अपनी नजर की नहीं फिक्स कर रहा है। 1 महीने का बच्चा थोड़ी थोड़ी नजर फिक्स कर सकता है। देन टोन हम असेस करेंगे ही। फिर जब हम उसको टच करते हैं तो उसका अराउज होने का, उसका स्टिमुलेट होने का क्या पैटर्न है, क्या वो बिल्कुल सुस्त है या वो उसकी एक्टिविटी अच्छी है। तो ये सब देखते हुए फिर हम उसकी थेरेपी प्लान करते हैं। अब थेरेपी प्लान, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब थेरेपी होलिस्टिक होनी है। होलिस्टिक का मतलब जिसमें विजुअल स्टिमुलेशन भी देना है हमको, क्योंकि हमें चाहिए कि जो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है हमें उसके उसके हिसाब से भी करना है, और ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी हमें ये देखना है कि ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट में कोई चीज, कोई भी एस्पेक्ट पीछे ना रहे। तो हमारे एज अ थेरेपिस्ट हम विजुअल स्टिमुलेशन के लिए हम जनरली ये करते हैं कि प्रॉपर असेसमेंट के बाद हम बच्चे को अगर जैसे विजुअल स्टिमुलेशन करनी है तो या तो हम देखिए, ये व्हाइट व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक, ऐसे ये व्हाइट एंड ब्लैक यहाँ है, तो व्हाइट एंड ब्लैक बच्चों को सबसे पहले दिखाई देता है। कलर्स दिखने से पहले भी व्हाइट एंड ब्लैक दिखना शुरू होता है। तो सबसे पहला स्टिमुलेशन जो है बच्चे के साथ वो व्हाइट एंड ब्लैक कलर से ही होना चाहिए। हाई कॉन्ट्रास्ट व्हाइट एंड ब्लैक से स्टार्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट 2 वीक्स जब अर्लीस्ट पॉसिबल हम शुरू कर सकते हैं, चाहे वो 1 महीने का बच्चा है, चाहे वो एनआईसीयू में ही हमें बच्चा मिल गया है। तो सबसे पहला होता है कि हमें ऐसे कार्ड्स बच्चे को दिखाने हैं। देखिए, देखिए अगर बच्चा ऐसे माँ की गोद में है
तो उसको ऐसे दिखाएगी मदर, इस तरह से दिखाएगी मदर कि, और टच कराएगी, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ ट्रायंगल। अब ये दिखाना आई के फोकस में 5 से 10 सेकंड के लिए हो सकता है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान आकर्षित करने के लिए, मदर और बेबी की बॉन्डिंग बेटर करने के लिए, और बच्चे को मदर की वॉइस से ऑडिटरी स्टिमुलेशन देने के लिए भी बोल रहे हैं। अभी बच्चा इसको देखे या ना देखे, बट ब्रेन को हमें ये स्टिमुलस देना है कि ये हाई कंट्रास्ट व्हाइट और ब्लैक हम आईज के सामने ला रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है ब्रेन और उसकी इमेज बन रही है। हो सकता है मदर को लगे कि बच्चे ने नहीं देखा, बट ओपन आईज पर बच्चे को ऐसे कार्ड दिखाने हैं। ओके, फिर हम एडवाइस करते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारा वीकली प्लान बच्चे को लाते रहते हैं, या फिर अगर बच्चा दूर का है तो हम उन्हें पूरे महीने का भी प्लान दे देते हैं। तो उसमें ये होता है कि व्हाइट और ब्लैक पेरेंट्स खुद बना लेते हैं कार्ड्स। तो ऐसे कार्ड्स, जैसे 3 to 5 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे कार्ड्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो ऐसे कार्ड्स पेरेंट्स जल्दी जल्दी दिखाते हैं। और क्रिसेंट, क्रिसेंट, अभी फर्स्ट 15 डेज के लिए जनरली व्हाइट एंड ब्लैक कॉन्ट्रास्ट के ही कार्ड्स दिखाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बेबी देखने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा मदर का स्टिमुलेशन, मदर का एक रूटीन बन जाता है। उसके बाद फर्स्ट फोर्टनाइट के बाद, जब से हमारे से शुरू किया, जब से एनआईसीयू के बाद 1 महीने के हुए हैं, अब 1.5 महीने पर आई कांटेक्ट डेवलप हो जाता है। तो मदर का विजुअल स्टिमुलेशन इस बात से भी है कि वो नजर से नजर मिलाकर बिल्कुल सामने ऐसे बिठाकर बात कर रही हैं। उसके साथ साथ वो टॉय भी दिखा रही हैं। अब कलर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें रेड, येलो, ब्लू ऐड कर सकते हैं। ब्लू एंड येलो का कंट्रास्ट भी 1.5 मंथ पर बहुत अच्छा विजुअल स्टिमुलेशन देता है। उसके बाद जो हमें कार्ड्स यूज करने होते हैं वो व्हाइट, ब्लैक एंड रेड कंट्रास्ट, क्योंकि अब कलर्स दिखने शुरू हो गए हैं। तो बच्चे को हमें व्हाइट, ब्लैक एंड रेड कार्ड्स दिखा सकते हैं। तो मोस्टली हम अलग अलग शेप्स एंड साइजेस एंड पैटर्न्स के कार्ड्स हम व्हाइट, ब्लैक एंड रेड के दिखाते हैं। सेम 5 to 10 सेकेंड्स ईच एंड 3 times इन अ डे। हम ये एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि दिन में 3 बार ये व्हाइट, ब्लैक एंड रेड कार्ड्स वो दिखाएं। अब कुछ बच्चे थोड़े थोड़े, जैसे विजुअल स्टिमुलेशन की ही बात करें, तो अगर आई कांटेक्ट 1.5 से 2 महीने पर नहीं आया है और कार्ड्स हम दिखा रहे हैं, तो हमें लाइट्स का यूज भी करना पड़ता है। टॉयज, हम कलरफुल टॉयज तो दिखाएंगे ही, लाइट्स के यूज में ये होता है कि 1 मिनट ईच हम एक टेबल लैंप लेकर और सेलोफेन शीट, जैसे रेड सेलोफेन शीट बच्चे के ऊपर ऐसे डार्कनेस में इस तरह टेबल लैंप के नीचे रेड सेलोफेन शीट लगाएंगे। तो 1 to 2 मिनट्स के लिए हम बच्चे को रेड लाइट दे रहे हैं एट ½ मीटर डिस्टेंस। हम रेड लाइट देंगे, तो रेड लाइट पर बच्चे अलर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमें देनी है। बट ग्रेजुअली पेरेंट्स को भी पता चलने लग जाता है कि कौन सी लाइट पे बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है। red, then 2 minutes of yellow, then 2 minutes of green, then 2 minutes of blue. तो red, yellow, green and blue लाइट्स का डार्क करके हम विजुअल स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं छोटे बेबीज में। बहुत सारी विजुअल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज करी जा सकती हैं आगे भी, अगर बच्चे को विजुअल कोई इशू आ रहा है। लेकिन टू स्टार्ट विद जो अर्ली इंटरवेंशन है, जिसमें हम बहुत अभी जानते नहीं है कि बच्चा देख रहा है कि नहीं देख रहा है, जब वो स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे बच्चा आई कांटेक्ट भी बनाने लग जाएगा। 2 महीने पर थोड़ा थोड़ा वो फॉलो भी करने लग जाएगा कि टॉय दिखाया, कि ऐसे ऐसे करके टॉय दिखाया, तो बच्चा इधर और इधर साइड साइड अपने आईज को मूव कर सकता है कि हाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा है धीरे धीरे फिक्स करके उसको, और वो फॉलो करने लगेगा।
फिर बाय 3 मंथ्स वो ऊपर और नीचे भी देखने लगता है। बाय 3.5 मंथ्स वो यूजुअली इन अ सर्कल भी फॉलो करने लगता है। तो इसी नॉलेज के बेसिस पर हम उसकी विजुअल स्टिमुलेशन को अपग्रेड करते जाते हैं विद द लिटिल थिंग्स इन द हाउस जो मदर अरेंज कर सकती है, कलरफुल टॉयज के साथ, लाइट्स के साथ, कंट्रास्ट कार्ड्स के साथ, जो कि बहुत इजी होते हैं बनाने के लिए। बस उसमें सही गाइडेंस और टाइमिंग की ही थेरेपिस्ट की बताने की नीड होती है। देन वी कम टू ऑडिटरी स्टिमुलेशन। जैसे कि हमने टेस्ट किया पूजा की बेल के साथ, तो अगर हमने टेस्ट कर लिया है लेकिन हमें फिर भी लग रहा है कि डाउटफुल है, कुछ कभी रिस्पॉन्स आया और कभी नहीं आया, तो हम ऑडिटरी स्टिमुलेशन भी करते हैं। तो ऐसे करेंगे और उसी साइड देन प्ले द बेल ऑन द अदर साइड, और फिर उसी साइड बच्चे की गर्दन घुमा देंगे। कभी कभी हम न्यूज़पेपर का रफल भी यूज करते हैं। ऐसा आवाज करेंगे और फिर 3 से 4 सेकंड की आवाज करने के बाद ऐसे घुमा देंगे, फिर इधर घुमा देंगे। तो 3 to 4 सेकंड्स बाद घुमाएंगे और 10 सेकंड्स तक ही करेंगे। ज्यादा करने से ऐसा नहीं है कि बच्चा सुनने लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर जो आवाज होती जा रही है उससे बच्चा हैबिचुएट हो जाता है, फिर उसे सुनना बंद कर देता है। तो जो एकदम से आवाज आती है उस पे बच्चे को अलर्ट करना है, उसको सुनवाते हुए धीरे धीरे गर्दन को घुमा देना है। Then we come to vestibular stimulation. Vestibular is the sense of the vestibular stimulation will develop the sense of space, कि मैं इस पोजीशन में हूँ। तो वो हम हैमक से करते हैं। हैमक से कि हमने ऐसे ही सॉलिड क्लॉथ, पतला कपड़ा, जिसमें कि हमने बच्चे को ऐसे ऐसे हमने पालने वाला पोजीशन दे देते हैं, और पालने वाली पोजीशन में ही छोटा छोटा रोल ऐसे ऐसे, फिर स्विंग, 2 लोग पकड़ के स्लाइड स्विंग करें, और फिर वर्टिकल एक्सकर्शन, सिर उठाया लेटे, सिर उठाया लेटे। ये चीज जब बच्चा मेडिकली स्टेबल हो जाता है तो ये एनआईसीयू में भी करा जा सकता है, क्रेडल में। और एनआईसीयू में जैसे प्रीटर्म इन्फेंट होता है, जो बिल्कुल प्रीमेच्योर बेबी होता है, तो जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं वो ऐसे अपने हाथ सडनली ऐसे स्टार्टल करते हैं, तो उनके हाथ और पैरों को बिल्कुल समेट के बीच में रखना होता है। तो यही अगर प्रीमेच्योर बच्चों की बात करेंगे तो एनआईसीयू में भी, एनआईसीयू से डिस्चार्ज के बाद भी, और जब तक वो अपने जितने वेट पर होने चाहिए, जब तक वो पूरा अपना एज वो 40 हफ्ते के हो नहीं जाते हैं, तब तक उनका जो बिहेवियर है वो ऐसा ही होता है जैसा कि माँ के पेट के अंदर होता है। तो वो कभी ऐसे करेंगे, कभी जर्क करेंगे अपने पैरों को। तो हमारा थेरेपिस्ट का काम होता है उसे उन्हें करेक्टली पोजीशन करना, कि गर्दन भी बीच में है, हाथ भी मिड लाइन में है, और पैर ऐसे दूर नहीं रखे हैं, बिल्कुल समेटे हुए ऐसे रखे हैं। तो हम एक घोंसला बना लेते हैं एनआईसीयू में भी, और हम पेरेंट्स को भी घर पर ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसे ही सेमी फ्लेक्स्ड पोस्चर में, कि थोड़ा सा सिर उठा रहे, थोड़े से पैर उठे रहे, हाथ भी समेटे हुए हों, पैर भी समेटे हुए हों, और ये पोजीशन उसकी सेफ ऐसी रहे जिससे कि उसको ये फीलिंग हो कि मैं अपनी माँ के गर्भ में ही हूँ। इससे उन बच्चों को अगर हम ये फील देते हैं तो उनके जो ब्रेन पर जल्दी पैदा होने के जो इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, वो कम आते हैं, क्योंकि वो उस पोजीशन में रहे जिस पोजीशन में मम्मी के अंदर थे। तो वो हमने फीलिंग अगर बाहर भी दे दी, तो ये एज अ थेरेपिस्ट ये हमारी सक्सेस है कि पेरेंट्स और हमारे और पीडियाट्रिशियन के टीम वर्क से हम वो वही एनवायरनमेंट दे पाए जो अंदर था। अब जो प्रीटर्म इन्फेंट्स हैं उनको टैक्टाइल स्टिमुलेशन भी चाहिए होता है। तो टैक्टाइल स्टिमुलेशन में मोस्टली सबसे पहला टैक्टाइल स्टिमुलेशन तो कैंगरू मदर केयर होता है, कि सबसे पहले माँ या फादर भी या कोई भी घर में रोटेशनली कि टर्न बाय टर्न बच्चे को अपनी स्किन से डायरेक्टली लगा के रखे, वही वार्मथ दे जो माँ के अंदर
मिलती है। तो उस कैंगरू मदर केयर से पहली बात वो फीलिंग मिलती है बच्चे को कि मैं मम्मी के अंदर हूँ, वो सिक्योरिटी मिलती है कि मैं मम्मी के अंदर हूँ। उस जो वार्मथ है उससे वो वेट गेन करता है, क्योंकि वो टेम्परेचर अपना मेंटेन कर पा रहा है मदर से या फादर से, जो भी कैंगरू मदर केयर कर रहा है उसका, उसकी बॉडी कर रही है टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम। तो उसका जो कैलोरी लॉस है, जो वेट लॉस है, वो इसलिए नहीं होता कि वो टेम्परेचर मेंटेन करने में हो रहा है, क्योंकि उसके पास तो जरा सा ही वेट है। तो उस जरा से वेट में भी अगर वो ठंडा और गर्म करने के चक्कर में वो लूज कर लेगा तो फिर क्या बचेगा। तो कैंगरू मदर केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट टैक्टाइल स्टिमुलेशन है। एज अ थेरेपिस्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर बच्चा 25, 26, 27, 28 हफ्ते पर हो गया है तो मदर को बहुत लंबी जर्नी होती है उसकी 40 वीक्स तक पहुंचने की। तो उस जर्नी में कैंगरू मदर केयर बहुत हेल्पफुल होती है। उसके अपने मेडिकल बहुत इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं जो डॉक्टर अनुज भी शेयर कर सकते हैं बाद में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यही कि कैंगरू मदर केयर से टच मिलता है, और टच जो है हमारे हाई रिस्क बेबी और स्पेशली प्रीमेच्योर बेबीज के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो वो जो टच थेरेपी है जिसमें कि हम थोड़ा थोड़ा मसाज दे रहे हैं, थोड़ा मसाज बहुत मेजर्ड, थोड़ा मसाज दे रहे हैं, थोड़ी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, थोड़ी स्ट्रोकिंग कर रहे हैं, स्ट्रोकिंग कर रहे हैं, वो छोटे हाई रिस्क बेबी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन करते हैं, फर्स्टली एनआईसीयू में, एनआईसीयू में हम प्री मेच्योर बच्चों की 5 मिनट्स 3 टाइम्स अ डे ऐसा एडवाइजेबल है कि 5 मिनट 3 बार दिन में मिलनी चाहिए बच्चे को। और 5 मिनट्स जो मिलती है उसमें फर्स्ट और थर्ड फेज, जो सुबह और शाम वाला फेज है 5 मिनट वाला, उसमें केवल माँ या थेरेपिस्ट स्ट्रोकिंग करें, स्ट्रोकिंग करें, साथ साथ ओरोमोटर स्टिमुलेशन भी करें, यहाँ की भी स्ट्रोकिंग करें, ऐसे ऐसे, फिर जॉ कंप्रेशन भी करें ऐसे ऊपर की ओर, फिर लिप्स पर टैपिंग करें, और फिर इस तरह से ऊपर की ओर कानों की तरफ स्ट्रोक करें। इससे फीडिंग बिहेवियर भी इम्प्रूव होगा। और अदरवाइज जो पैरों की पैरों पर स्ट्रोकिंग है ये। अब जो सेकंड वाला फेज है, जो दोपहर वाला फेज है, उसमें कंप्रेशंस करने हैं और एक्सरसाइजेस करनी है, जो कि थेरेपिस्ट एडवाइस करते हैं और थेरेपिस्ट खुद भी करते हैं। तो कंप्रेशंस का मतलब ये है कि बहुत हल्के हल्के हाथ से, जैसे एवरी जॉइंट को हल्का हल्का 10-10 बार कंप्रेशन, इस तरह से, ऐसे, इस तरह, फिर ये, देन नी को इस तरह कंप्रेशन, एंड देन हिप को अंदर की तरफ। और जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जो हम 1 महीने का बच्चा हो या वो नर्सरी में है, जो न्यूबॉर्न्स के साथ जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, वो हम मोस्टली स्टिमुलेशन के लिए ऐसा एडवाइस करते हैं। ये बहुत जनरल एक्सरसाइजेस हैं, हर बच्चे का न्यूरो बिहेवियर अलग भी हो सकता है, बट बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस जो कि करी जा सकती हैं। वो चाहे ऐसे, ऐसे, देन तरह, बहुत जेंटली, ये हमारी सेकंड फेज में करने की एक्सरसाइजेस हैं। इस तरह, देन छोटी छोटी रेसिप्रोकल मूवमेंट्स, हल्का सा हिप का मूवमेंट, देन हैंड्स का मार्कर ऐसे पीछे की ओर, ऐसे एल्बो का, और फिर बहुत आहिस्ता से शोल्डर्स, एल्बो स्ट्रेट रखते हुए शोल्डर्स का मूव। तो ये हमारा प्री टर्म इन्फेंट्स के लिए है। और जो दूसरे हाई रिस्क इन्फेंट्स हैं उनके
2 बार ही हम NICU में करते हैं, और एक्सरसाइजेस जब फॉलो अप होता है डिस्चार्ज पर, तब हम उनको 3 टाइम्स ही एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज दिन में। जो NICU में जो 2 बार होती है, उसमें 15 मिनट्स ईच सेशन कर सकते हैं। प्रीटर्म बच्चे जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं, ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, इसलिए उनको हम 3 फेजेस में करते हैं। और अदर हाई रिस्क इन्फेंट्स जो हैं, जो कि फुल टर्म हुए हैं पर किसी और कारण से नर्सरी में है, तो उनको हम 15 मिनट्स 2 फेजेस में देते हैं। और उसमें हमें एक बार ओनली स्ट्रोकिंग, मदर्स वॉइस या वेरी जेंटल टॉकिंग, विजुअल स्टिमुलेशन, ऑडिटरी स्टिमुलेशन एंड जेंटल कंप्रेशंस, और दूसरी बार में एक प्रॉपर एक्सरसाइज जिसमें कि ओरोमोटर भी हो जाए और सारी जॉइंट्स की और मसल्स की जनरली एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए उनकी थेरेपी की जाए। अब आता है हमारा ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन। ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन में हम स्मेल्स लेते हैं, जैसे सिंपल वनीला स्मेल है जैसे, तो इतनी दूरी पर, बच्चे की इतनी दूरी पर हम उसे स्मेल देते हैं, बिल्कुल नोज के पास नहीं ले जाना होता है। और हम कोई 2 स्मेल्स, जैसे मेरे हाथ में अभी वनीला है और जैस्मिन है, कोई भी स्मेल्स हो सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि कोई बॉटल्स ही हो जिसमें जो हम लेके बैठे हैं, वैसा नहीं जरूरी है। आप इलायची और दालचीनी की भी स्मेल दे सकते हैं। मेन बात यह है कि उन सेंटर्स को स्टिमुलेट करना, उनको जागृत करना, क्योंकि हमें उन्हें यूज कराना है। जैसे डॉक्टर अनुज ने बोला कि यूज इट और लूज इट, तो हमें यूज इट से लूज इट तो कराना ही नहीं है, हमें तो यूज इट से इम्प्रूव इट कराना है। तो यूज इट एंड इम्प्रूव इट की वजह से हमें उन सेंटर्स को स्टिमुलेट करना है। तो हमें कोई 2 स्मेल्स, एनी 2 स्मेल्स फॉर 3 टाइम्स अ डे हम यूज करें, और फिर नेक्स्ट वीक में हम वो 2 स्मेल बदल दें। जैसे कि मैंने अभी वनीला और जैस्मिन लिया, तो उसके बाद हमने रोज और चंदन ले लिया। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें मिल सकती हैं घर में, जैसे गुलाब जल मिल सकता है, चंदन का फेस पैक मिल सकता है, जो बच्चे से दूर रख के उनको स्मेल कराया जा सके, और एवरी वीक हम कोई ना कोई और स्मेल लेते जाएं। उसके बाद आता है कि जनरली हम ऑडिटरी स्टिमुलेशन की जैसे हमने बात करी थी, तो हम जैसे कोई भी हैंडल कर रहा है बच्चे को, तो वो अलग अलग तरह की आवाजें बनाए, जैसे कि बटन डालिए एक डिब्बी में, या फिर घुंघरू डालिए, या थर्मोकॉल की बॉल्स डालिए, एक ही बटन डाल दिया। तो ऐसा करके हम बच्चे को अलग अलग तरह के ऑडिटरी स्टिमुलेशन भी दे सकते हैं। ओके, एंड हैंडल करते हुए, कपड़े बदलते हुए, जब मदर बच्चे के साथ टाइम बिता रही है, या दादी या पापा या दादू कोई भी बच्चे के साथ टाइम बिता रहा है, तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ उसको इनपुट जरूर देनी है। तो हम डिफरेंट तरह के टेक्सचर्स उसके पाम्स और सोल्स पर दे सकते हैं। और हमें वो टेक्सचर्स, जैसे हम सोल्स पर दे रहे हैं, तो 3 टाइम्स एक टेक्सचर लगाया, और एक बार में कोई 3 टेक्सचर लगा सकते हैं। जैसे ये वेलवेट है, जैसे फोम हो गया, जैसे सैटिन हो गया, जैसे फेदर हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, मलमल का कपड़ा हो गया, कुछ भी, तौलिया हो गया, शॉल हो गई। तो आपके पास जो भी है, अलग अलग तरह का टेक्सचर बच्चे के लगाते रहें, जिससे कि उसके सेंटर्स जो जो हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं, हम एहसास बढ़ाना चाहते हैं बच्चे का, वो हम इनपुट दे रहे हैं, और वो इनपुट कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। हम वो नए जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात पर ही आए, कि जो हम कर रहे हैं उससे नए न्यूरोनल कनेक्शंस बन रहे हैं, उन नए न्यूरोनल कनेक्शंस से नए पाथवेज क्रिएट हो रहे हैं, और वो नए पाथवेज क्रिएट होने से जो अफेक्टेड ब्रेन था, हमारे जो प्रॉब्लम हुई बच्चे को नर्सरी के दौरान, जब जिसकी वजह से वो नर्सरी आया, बर्थ के दौरान जो प्रॉब्लम हुई, उसमें जो भी एरियाज अफेक्ट हुए वो तो हो गए अफेक्ट, लेकिन हमने जब मेहनत करी तो जो इंटैक्ट और हेल्दी ब्रेन था उसने नए कनेक्शंस बनाए। उन नए कनेक्शंस ने फायर किया, जब हमने उनके ऊपर काम किया, वो नई तरह से वायर हो गए,
तो उन्होंने अफेक्टेड एरिया का भी काम लेना शुरू कर दिया। तो यही प्रिंसिपल हमें यूज करना है अर्ली इंटरवेंशन में, कि हम इतना अच्छे से बच्चे को पहले से ही, जब माइलस्टोन अचीव करने से पहले से ही हम उसके ऊपर इतने ब्यूटीफुली काम करें, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को सोचते हुए, उसकी डेवलपमेंट की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सोचते हुए, मदर मदर का जो इंटरैक्शन है वो बहुत पॉजिटिव हो, और जैसे उसका ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत एनरिचिंग हो, कि जो उसको आवाजें जा रही हैं, जो उसको टच जा रहा है, जो उसको हम जो भी इनपुट्स दे रहे हैं, वो सब बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ऐसा सोचते हुए अगर हम बच्चे के साथ काम करेंगे एज पेरेंट्स, और हम थेरेपिस्ट की राइट टाइम पर गाइडेंस लेते रहेंगे पीरियोडिकली, तो या जो भी वो अर्ली इंटरवेंशन की बात समझाना चाहते हैं, जो गाइड करना चाहते हैं, जो एक्सरसाइजेस बताते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि टोन बढ़ रही है, जैसे कि अब 1 महीने के बच्चे पे तो हमने ये कर लिया, लेकिन अब वो पेरेंट आए नहीं। जब वो 3.5 मंथ्स पर आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो यही सब कर लिया मैम, या आपने बहुत सारा कुछ बताया था, तो हम तो यही कर रहे थे। तो अब 3.5 मंथ्स पे जब वो आया बच्चा, तो हो सकता है कि वो बेबी टाइट हो गया हो, उसकी ये टोन हमें बहुत टाइट लग रही हो, कि यहाँ से टाइट है। अब हमने यहाँ अगर हम चेक करते हैं टोन, तो हम पॉप्लिटियल एंगल चेक करते हैं ऐसे, हम स्कार्फ साइन चेक करते हैं ऐसे। तो ये एमिल्टिसन स्कोरिंग होती है जो न्यूबॉर्न्स में यूज करी जाती है। हम डॉर्सीफ्लेक्शन एंगल चेक करते हैं। तो अब ये सब हमने देखा कि बच्चे का तो टाइटनेस आ गई, क्योंकि वो जो इनपुट्स दी थी उन्होंने, वो तो हमने 1 या 1.5 महीने के हिसाब से बताई थी, और पेरेंट्स ने फॉलो अप नहीं किया। तो वो 3.5 मंथ्स पे वो टाइट हो जाएगा, तो वो लूज कर गया वो टाइम जिसमें हम उसकी टाइटनेस आने से बचा सकते थे, और हम उसकी टोन के ऊपर, उसको स्ट्रेचिंग करने पर हम वर्क कर सकते थे। तो बेसिकली बिसाइड्स द एनवायरनमेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि हम टाइमली गाइडेंस अपने डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट की लेते रहें, जिससे कि कोई एस्पेक्ट ऑफ माइलस्टोन मिस आउट ना हो जाए। जैसे कि हमारा प्लान करने का तरीका होता है कि 1.5 मंथ पे हम सोचते हैं कि आई कांटेक्ट आने वाला है, तो आई कांटेक्ट के ऊपर हम विजुअल पे ज्यादा काम करते हैं। फिर हमें लगता है कि अब हमें नेक होल्डिंग पर भी काम करना है साथ साथ, तो हम नेक होल्डिंग के लिए हम नेक की एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं पहले से ही। अब अगर 3 से 4 महीने के बीच में हमें लगता है कि अरे मतलब सोशल स्माइल भी नहीं आई अभी, तो ये बच्चा स्माइल नहीं करता हमें देखकर, तो या फिर ये कू नहीं कर रहा है, हुंकारे नहीं भर रहा है, तो हमें उसको इसी चीज के ऊपर वर्क करना है कि उसकी आई कांटेक्ट कंसिस्टेंट हो जाए, वो कैसे स्माइल करेगा, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट जो उस फेज की है वो कैसे हम प्लान आउट करेंगे। तो एवरी विजिट हैज अ पर्पस, कि आप पेरेंट्स का हर विजिट जो है, चाहे जिस भी हम फ्रीक्वेंसी पे बुला रहे हैं, उसका एक गोल है कि हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं, हमें इस माइलस्टोन को एड्रेस करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया। जैसे कि न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी होती है, तो वो बेसिकली की पॉइंट्स यूज करते हुए वेट बेरिंग पे फोकस करते हैं थेरेपिस्ट। तो हम जब भी एनडीटी बताते हैं, एनडीटी इज न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी, तो हम वेट बेरिंग के हिसाब से बताते हैं, कि कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी मूवमेंट कर दिया इट विल बी थेरेपी। अगर हमने 3 मंथ्स का बच्चा बुलाएंगे, तो प्रोबेबली वी विल डू दिस, कि हमने हाथों पर वजन लिया, और हमने उनकी हथेलियों को खोलकर, अच्छे से फिंगर्स को खोलकर ऐसे वजन डाला, और हमने हेड टाइटली अप रखा, तो नेक होल्डिंग भी इम्प्रूव होगी, हैंड फंक्शन भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, और धीरे धीरे बच्चा राइट करने लग जाएगा, अपने हेड को सीधा करने लग जाएगा। उसके लिए ये नेसेसिटी हो जाएगी कि मुझे अपनी गर्दन भी ऊपर रखनी है, मुझे अपने आर्म्स को भी यूज करना है, और मुझे हथेलियों पर भी वजन लेना है। तो ये जो, अगर हमें इस एक्सरसाइज की स्पेसिफिकली बात करूं, तो ये तब भी काम आ जाएगी जब सिटिंग आएगी और बच्चे ने हाथ पे वजन लेना शुरू कर दिया। तो वो बच्चा अगर सिटिंग नहीं कर रहा है,
तो हमने जो मेहनत एट 3.5 मंथ्स पर करी हथेलियों पे वजन डालने की और हथेलियों को खोलने की और फिंगर्स को सीधा करने की, वो तब भी काम आएगी कि बच्चा गिर रहा है तो वो अपने अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। ऐसे कि गिर रहा है तो वो अपने हाथ लगा लेगा और वो अपने आप को राइट कर लेगा, मतलब अपनी ट्रंक को गिरने से बचा लेगा। जैसे इस साइड करेंगे तो ये ऐसे गिर रहा है तो वो अभी बैठ नहीं भी पा रहा है तो फिर वो बीच में अपने आप को साध लेगा। तो एवरी स्टेप, जैसे कि डेवलपमेंट जो है वो एफिलोकॉर्डल होता है, मतलब सिर से नीचे जाता है। जैसे पहले नेक होल्डिंग आती है, फिर उसके बाद सिटिंग आती है, फिर क्रॉलिंग आती है, फिर उसके बाद स्टैंडिंग आती है विद सपोर्ट, उसके बाद फिर वॉकिंग आती है। तो ऊपर से नीचे जाता है डेवलपमेंट। तो थेरेपिस्ट का जो फोकस होता है वो एवरी विजिट पर यही होता है कि अब क्या अचीव करना है हमें, और नहीं अचीव कर हो रहा है तो उसके लिए हमें उस समय क्या करना है। अगर वो बीच के टाइम लूज कर जाता है बच्चा और वो फिर 1 साल पर आ रहा है, वो 1 साल पर आ रहा है, अब सिटिंग पर काम करना था हमें 4.5 मंथ से, तो 1 ईयर पे आए तो हम सिटिंग अभी तक भी नहीं आई है, तो फिर हम वो कितना बड़ा लैग हो गया। एक साथ 6-7 महीने का काम करना कितना मुश्किल है, और वो रिजल्ट फिर भी नहीं आएंगे क्योंकि हम वो क्रूशियल पीरियड, जो क्रिटिकल पीरियड था न्यूरोप्लास्टिसिटी का, जब वो कनेक्शंस बन रहे थे, जब ब्रेन सेल्स डेवलप हो रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जो ब्रेन का डबल होने का जो ब्रेन सेल्स का डबल होने का जो टाइम था, जिस समय मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा था, वो लूज कर जाएंगे वो टाइम। तो वो इम्प्रूवमेंट जो तब आ सकता था, वो आप कितनी भी मेहनत कर लें 1 साल के बाद या लेटर टाइम पे, जब जब वो टाइम हम गाड़ी निकल गई है तो वाला बात हो गई कि गाड़ी निकल गई तो हम उसमें कैसे बैठ सकते हैं, फिर वो टाइम कभी दोबारा नहीं आता है। तो अर्ली इंटरवेंशन हैज अ वेरी वेरी बिग रोल in high risk children, high risk babies, and especially preterm infants. अब प्रीटर्म इन्फेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रीटर्म इन्फेंट्स मोस्टली इनमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि प्रीटर्म क्योंकि जल्दी हो जाते हैं तो उनके लंग्स अभी डेवलप होने बाकी होते हैं, कुछ ब्रेन की भी कुछ चीजें होनी होती हैं लेटर फेजेस में। तो जब वो जल्दी आ गए, उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई इनिशियल फ्यू आवर्स में, तो फिर उनको एक पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया जैसा ब्रेन में एमआरआई में दिखाई देता है, जिसकी वजह से मोस्टली ऐसा होता है, तो जिसकी वजह से मोस्टली स्पैस्टिक डाइप्लीजिया होता है। मोस्ट कॉमनली स्पैस्टिक डाइप्लीजिया होता है। स्पैस्टिक डाइप्लीजिया का मतलब होता है कि चारों हाथ पैर अफेक्टेड हैं, जिसमें से पैर थोड़े से ज्यादा अफेक्टेड हैं। तो प्री मेच्योर इन्फेंट्स में बहुत चांसेस होते हैं स्पैस्टिक डाइप्लीजिया डेवलप करने के, और हमारी जो राइट टाइम पे इंटरवेंशन है उनके साथ वो बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम्स ऐसे प्रेजेंट करती हैं जैसे कि वो टोज पर खड़े हो रहे हैं, या फिर उनके नीज अगर टोज पर नहीं खड़े हो रहे हैं तो उनके नीज बहुत पीछे चले जाते हैं, इस तरह से पैर वेल्गस में चले जाते हैं। वेल्गस मतलब बीच में वजन लेने लगते हैं, ऐसे इस तरह से ऐसे वजन लेने लगते हैं, और हिप्स बाहर को क्राउच हो जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन में, जैसे अगर हमारे पास कोई 1.5 साल का बच्चा आया है और उसके पैर हाइपर एक्सटेंशन में, मतलब पीछे को जाने ही लगे हैं सी पोजीशन में, तो फिर उसके उसके बैलेंस के ऊपर काम करना, उसकी वॉकिंग इंडिपेंडेंट लाना एक कम्बरसम प्रोसीजर है। लेकिन अगर हमने शुरू से एवरी मंथ प्रॉब्लम आनी भी थी, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया होना भी था, तब भी अगर हमने टाइमली काम किया होता तो हाइपर एक्सटेंशन में इतने नहीं जाते। हम उसकी टोन कंट्रोल में चलती रहती है, रेगुलेटेड चलती रहती, तो प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाती, जितनी कम से कम होती वो हो जाती। तो जो उसका वॉकिंग का इंडिपेंडेंट वॉकिंग का जो टाइम है, जो कि हो सकता है हमारी अब की थेरेपी से 4 to 5 years में आए, तो वो प्रॉबेबली जल्दी हो जाता। अच्छा, और प्रॉब्लम्स जो कितने ही बच्चों को चलने में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं प्रीटर्म बच्चों में, उनमें लॉन्ग टर्म न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम्स में ये होता है
कि कुछ बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं कि मतलब हम पेरेंट्स को लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक रहा और उनको फिर लर्निंग डिफिकल्टीज आती है कि जैसे कि अक्षरों को पहचानना, अल्फाबेट्स को लेटर्स को पहचानना, नंबर्स को पहचानना या फिर उल्टा लिख देना अम, जैसे कि सी को उल्टा बना देना और ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चलती रहती है। रिकग्निशन में भी प्रॉब्लम, राइटिंग में भी प्रॉब्लम, एक ओवरऑल किसी-किसी बच्चे में क्लमज़ीनेस होती है कि वो जल्दी से गिर जाता है, देख के नहीं चलता है ठीक से और ऐसा भी हो सकता है कि शूज़ गलत पहने और ये परसिस्टेंटली ये प्रॉब्लम चलती जा रही है, जो अर्ली साइन्स है लर्निंग डिफिकल्टीज़ के। तो ये दिखाई देने लगते हैं एट अराउंड 2 एंड अ हाफ इयर्स। कुछ बच्चों में ऑटिज़्म भी हो जाता है, कुछ प्री टर्म बच्चों में ऑटिज़्म भी दिखाई देता है। तो ऑटिज़्म एक ऐसा मेंटल कंडीशन है जो बिल्कुल टाइमली डायग्नोज होनी चाहिए जिससे कि हम अर्ली इंटरवेंशन का मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ। अर्ली जो ऑटिज़्म है वो अ ऐसे समझ लें कि एक सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। तो इसमें अगर डेढ़ से पौने 2 साल के बीच में अगर डायग्नोसिस नहीं बनता है, तो फिर चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। इसमें अर्ली साइन्स मिलने लगते हैं कि बच्चा पहले थोड़ा-थोड़ा बोलता था, लेकिन एकदम से उसका बोलना कम हो गया। फिर उसने नज़र मिलानी भी छोड़ दी और नज़र मिलानी छोड़ने के बाद वो अब अपने किसी पर ध्यान नहीं देता है, अपने में ज़्यादा मगन रहने लगता है और नेम को रिस्पॉन्स नहीं देता है, ऐसे करके बच्चे आते हैं या बिल्कुल भी स्पीच नहीं आ रही है या बहुत समझ कर नहीं बोलता है, कुछ भी बैबल करता रहता है। तो जब हम थेरेपी को हम प्लान कर रहे हैं हम शुरू से, तो हमारा जो वॉच है ओवर मोटर माइलस्टोन्स की उसने वॉकिंग अचीव करी या नहीं करी, फिर उसको ऑटिज़्म तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसे साइन्स एंड सिम्पटम्स तो नहीं है जो डिफरेंट हो दूसरे बच्चों से। कुछ किसी और सिचुएशन में हमें लगे कि बाकी सब तो ठीक है, बस ये वाली चीज़ थोड़ा मिसिंग लगती है, तो कहीं लर्निंग डिफिकल्टी तो नहीं है। तो ऐसा सब देखते हुए थेरेपिस्ट को अपना प्लान बनाना पड़ता है, टीम वर्क करना पड़ता है विद द पीडियाट्रिशियन और जो भी कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हो या साइकोलॉजिस्ट हो, जैसे भी रिक्वायरमेंट है, उनको टीम अप करना पड़ता है, तब जाके इन बच्चों की अर्ली इंटरवेंशन कंप्लीट एक टीम के साथ वो मतलब एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बनता है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इसके रोल को समझें कि वो एनआईसीयू में क्या है, वो उसके बाद क्या है, उस और वो कब तक हम टच में रहना है। जैसे प्री मैच्योर बच्चों को बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये तो 2 महीने पहले पैदा हुआ था। तो हम इसे बोलते हैं करेक्टेड एज कि 2 महीने की अगर 9 महीने का प्री टर्म बच्चा है, तो उसका हम असेसमेंट 7 महीने के हिसाब से करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि ये तो कमज़ोर है, थोड़ा जल्दी हुआ था। तो इसीलिए वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि उन उसका बच्चे का माइलस्टोन्स बियॉन्ड द करेक्टेड एज वाला पीरियड भी बहुत डिलेड है। तो वो इस वजह से वो वेट एंड वॉच में रहते हैं और वो लेट हो जाते हैं। थैंक यू, मैं बहुत सारा बोल गई। थैंक यू सर, अब आप प्लीज़ टेक ओवर। अब आप बताइए। थैंक यू इंची, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सारे मैटर्स को। देखिए, जो इंची ने बताने की कोशिश करी है, वो उन्होंने बताया कि जिन बच्चों के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, जिन्हें हम हाई रिस्क इन्फेंट कहते हैं, उनके अंदर जो उनके माइलस्टोन समय के साथ अचीव होने हैं, उसी विंडो से पहले, जैसे कि बच्चे को टर्न होना 3 से 4 महीने में, तो पहले ही थेरेपिस्ट उनको सिखाते हैं कि उनको टर्न करना सिखाइए। या जैसे 6 महीने पे बैठना है, तो उससे पहले बताएँगे, उससे खूब बात करना सिखाएँगे, एक बॉन्डिंग बनेगी। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है
कि मदर, ऐसी मदर अगर जो कुछ नहीं करती और बाद में जब उन्हें शौक लगता है कि बच्चा जो है और बच्चों की जैसा नहीं है, तो बहुत ज़बरदस्त डिप्रेशन में चली जाती हैं। फिर वो अपनी फैमिली भी एक्सटेंड नहीं करना चाहती। इसके बहुत साइको सोशल रीजन रिपरकशंस हैं। और ये जो बच्चे जो जितना इनका अर्ली इंटरवेंशन शुरू हो जाता है, इनमें मोस्टली बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और ज़रूर, जैसे कि इंची ने बताया, कि ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई मोटर प्रॉब्लम हो, बट उनकी कॉग्निशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लर्निंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और वैसे भी देखा जाए तो इस थेरेपी के अंदर ना कोई बच्चे का कोई नुकसान तो नहीं है। अगर बच्चा, देखिए सब बच्चे देखने में एक जैसे दिखते हैं, बैठना तो वो जब बैठेंगे तभी पता चलेगा, या पलटना जब सीखेंगे तभी पता चलेगा। अगर उनकी थेरेपी करी जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बच्चे के लिए अच्छा ही है। और बहुत सारी चीज़ें जो हम समय रहते अगर बच्चों को सिखा दें, तो उसके जो आउटकम्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। तो यही इसी के साथ मैं आज की टॉक यहीं पे फिनिश करेंगे। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस पेशेंट लिसनिंग। एंड नेक्स्ट थर्सडे we will be coming up with a new topic, and next Thursday we will be talking about it. There is a quote, a lot about a lot about the working human brain. A lot about working of the human brain is situations are unknown to us, and these are uncharted territories. Something we should learn. We something we begin to learn. With time, we hope to have more answers for you as the years go by. जो आज हम जानते हैं इसका 50% आने वाले 10 साल में गलत साबित होगा, बट स्टिल, और जो हम 10 साल पहले जानते थे वो आज उसका 50% गलत साबित हो चुका है। तो साइंस इवॉल्व कर रही है, रोज हम नई नई चीजें सीखते हैं मैनकाइंड की को बेटर करने के लिए। एंड दिस नोट आई विल स्टॉप हियर, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू Thank you अजिंक्य, so much. थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. All right.